یاد رکھیں گے تجھے اہل عذاب کربلا 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 یاد رکھیں گے تجھے کربلا 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 یاد رکھیں گے تجھے اہل عذاب کربلا 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 یاد رکھیں گے تجھے اہل عذاب کربلا یاد رکھیں گے تجھے اہل عذاب مولا عباس کا حرم ابھی تک ہم سنا کرتے تھے کہ بین الحرمین جنت کا احساس ہوتا ہے، دیکھا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بین الحرمین پہنچا دیا۔ دو جنتوں کے درمیان ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک جوانان جنت کے سردار اس طرف ہیں اور ایک سیدت نساء العالمین کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام ہیں، اور اتفاق سے جناب عباس علیہ السلام کے کرم سے ہم باب الحسین کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ باب الحسین ہے، اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر جو کہ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں حاضری دی جائے، کیونکہ باب الحسین جناب عباس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سب مل کر ہم وہ مناجات پڑھتے ہیں جو جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں اور امام حسین السلام سے التجا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور جس جگہ ہم ہیں یہ سرزمین کربلا ہے، 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقربا کو، ہم بھی ایک کاروان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس جگہ پہ، لیکن بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ زیارت کے لیے اس سرزمین کربلا پہ آئے۔ لیکن ذرا آپ تصور کریے 1400 سال کے بعد، اور یہ اتفاقات جو ہوتے ہیں کربلا میں وارد ہونے کے بعد، میں نے کئی سفر میں تجربہ کیا ہے کہ جتنی مشکلات کربلا میں آ جائیں خدا کا شکر انسان ادا کرے کہ ہم ان سے قریب ہو جاتے ہیں اگر ذرا سی مشکل ہمیں اٹھانی پڑے۔ اور یہ واقعاً میں صبح سے لے کر اس وقت سوچ رہا تھا کہ ساری پلاننگ کے باوجود بھی آخر ایسا کیا ہوا کہ جو ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو صبح میں آپ حضرات زائرین نے جن مشکلات کا سامنا کیا۔ لیکن پھر میں بہت غور کرتا رہا، اس نتیجے پر پہنچا کہ کربلا میں آنے کے بعد اگر آسانیاں فراہم ہو جائیں تو شاید امام حسین السلام کی نگاہ کرم نہ ہو، چاہے مولا سے قریب ہم نہ ہو پائیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اس سرزمین سے گزرے ہیں کسی کے پیروں میں ٹھوکر لگی ہے، خون بہا ہے، کسی نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کسی نے اپنے جوان کو یہاں پہ کھویا ہے، کسی نے اپنے 6 مہینے کو کھویا ہے، 6 مہینے کے بچے کو کھویا ہے، کسی نے اپنے 13 سال کے بچے کا پامال لاشا دیکھا ہے۔ اس سرزمین کربلا پہ، یہ وہ سرزمین کربلا ہے۔ ہم اور آپ اپنی قسمت کو آس کریں کہ وہ وقت قریب ہے کہ جسے روز عرفہ کہتے ہیں۔ روز عرفہ کون سا روز ہے کہ جس روز امام حسین علیہ السلام نے کربلا آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس طرف رخ کر کے، مولا آپ نے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر اسی دن آنے کا ارادہ کیا تھا، ہم لوگ اسی دن آ کر آپ کے اتباع کرنے کے لیے آپ کے باب حسین کی طرف کھڑے ہو کر مولا سے التجا کرتے ہیں، مولا ہمارے آنے کو قبول کریے اور ہم سب کے اوپر نگاہ کرم کریے، ہم سب دست بستہ
जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के शुक्रगुजार हैं कि मौला आपने हमारे आने को कबूल किया। गैरत की कबूलियत की निशानी ये होती है कि अगर सरजमीन करबला पे इंसान खरीद हो, मुश्किलात और परेशानियां साथ होने लगे तो समझिए हुसैन के भाई ने निगाहे करम कर दिया है, हमारे आने को कबूल कर लिया। मौला हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे आने को कबूल कर लिया। यही जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का यहाँ पे हरम है, यहीं से कुछ दूर है जहाँ से हम आए हैं, जिस होटल के करीब वो जगह है जहाँ पे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का दाहिना बाजू कलम हुआ। उसी के थोड़ा सा आगे है जहाँ पर अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। यहाँ से काफ़ी दूर पे नहर फरात है जहाँ पर अब्बास ने अपने हाथों से खैमे लगाए थे। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से अपने हाथों से खैमों को उठाकर ख़याम हुसैनी यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ भी इंशाअल्लाह कल के बाद ज़ियारत के लिए जाएंगे। लेकिन आज की शब जो शब अरफा और कल का दिन जो रोज़ अरफा है, दो मुनासिबतें हैं। यानी हुसैन करबला में आना चाहते थे, लेकिन बहुत पहले अपने सफ़ीर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील जो मस्जिद कूफा के करीब दफन है, वहाँ भी हम सब ज़ियारत के लिए जाएंगे। आज की शब गुजरने के बाद कल का दिन जब आएगा तो सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील कूफे की गलियों में तन्हा, न कोई मदद करने वाला है, न कोई बेमुनिस मददगार। उसके बाद मुस्लिम इब्न अकील सारे मसाइब को मैं छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील को कूफे में धोखा दिया गया। जैसे ही हुसैन को पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील वहाँ पहुँचे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तिराबाना अंदाज में जनाब मुस्लिम तक खबर पहुँचाने की कोशिश की। और उधर जनाब मुस्लिम परेशान थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आका वारिद इराक हो जाए और वारिद कूफा हो जाए, क्योंकि 20,000 लोगों ने इमाम हुसैन सलाम को ख़त लिखा था कि आका आप आ जाइए, हमारी तलवारें आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब सफ़ीर को भेजा इमाम हुसैन सलाम ने तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने चेहरे पर निकाब डाल के वो कहता है कि अनाल हुसैन, मैं हुसैन कूफे में आ गया हूँ, सफ़ीर हुसैन की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने साथ छोड़ दिया जनाब मुस्लिम का। नतीजा ये हुआ कि जनाब मुस्लिम यको तन्हा हो गए। उसके बाद 5,000 की फ़ौज तन्हा जनाब मुस्लिम फ़ौज का मुकाबला करते रहे। आखिर में ये हुआ कि फ़ौजों ने जब हमला किया जनाब मुस्लिम यको तन्हा रह गए। उसके बाद एक जगह खचो खाचाक, क्योंकि शब शहादत आने वाली है, हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करते हैं। मुक़द्दमे करबला यानी करबला की शुरुआत जिस मज़लूम से हुई है उनके पुरसा पेश करते हैं। और जनाब मुस्लिम जब जंग कर रहे थे तो उस जगह पर खसो खाशाक इकट्ठा कर दिए गए। जनाब मुस्लिम जोश जंग में, बस आखिरी तसव्वुर अगर कर लें तो वाकई जब भी आप याद करेंगे गिरिया करेंगे। जोश जंग में आगे बढ़ते जाते हैं, हमला करते जाते हैं, और सिर्फ खसो खाशाक नहीं थे बल्कि ऊपर से लग रहा था ज़मीन है, लेकिन अंदर तलवार रखी हुई थी, भाले रखे हुए थे, तीर रखे हुए थे। मुस्लिम जोश जंग में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उनका घोड़ा जैसे ही नीचे आया, मुस्लिम भी उस गड्ढे में चले गए। कहीं इधर से तलवार लग रही थी, कहीं उधर से भाला लग रहा था, कहीं इधर से तीर लगे थे। जनाब मुस्लिम तलवारों के बीच में गड्ढे में गिर पड़े। उसके बाद दुश्मनों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन्हें दरबार में लाया गया। दरबार में लाया गया तो मलऊन कहता है, तूने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अमीर को सलाम नहीं किया। उसने कहा, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है, सिर्फ मैं अपने
आका को सलाम करता हूँ। बस अज़ादारों, जनाब मुस्लिम की शब शहादत आने वाली है। हम सब हिंदुस्तान से बड़ी ही सोबतें बर्दाश्त करके करबला पहुँचे हैं। करबला में भी सोबतों को बर्दाश्त किया है, लेकिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील जो हुसैन के सफ़ीर बन के गए थे, जनाब मुस्लिम को पानी तक नसीब नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि मुकद्दमे करबला थे। जब गिरफ्तार करके उनको लाया गया, उसके बाद उन्होंने, चूँकि जोश जंग करते करते उनकी हालत बड़ी गैर हो गई थी। और आप खुद जब इराक़ में दाखिल हुए तो एक एक लम्हे के बाद पानी की तलब होती है, ज़रा सा पानी मिल जाए, ज़रा सा। आज भी यानी 1400 साल के बाद, इतनी तरक्की होने के बाद इंसान जब इराक़ में आता है तो शिद्दत गर्मी का एहसास खुद इंसान करता है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील कूफे में जब दाखिल हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जब ले जाया गया तो एक मर्तबा मश्क रखी हुई थी। उन्होंने कहा ज़रा सा अगर पानी हमको मिल जाए, हमें तो अब पता है कि हम दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि मेरे आका ने मुझे कह के भेजा था, ऐ मुस्लिम कूफे जा तो रहे हो, लेकिन अपनी बच्चियों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेर के जाओ। इसलिए मालूम नहीं है फिर वापस आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। जैसे ही पानी तलब किया, पानी लाया गया, मैंने जो कहा था उसको तस्वीर करिए कि तलवार और नेज़े और भाले उस गड्ढे में रखे गए थे। मुस्लिम जब उस गड्ढे में गए तो कोई तलवार मुस्लिम के होंठ पे लगी, कोई रुखसार पे लगी, कोई गर्दन पे लगी, कोई कहीं लगी। मुस्लिम को जैसे ही पानी का कूजा दिया गया, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपने होंठों तक पहुंचाया। जैसे ही होंठों तक